एफआईआर कैसे क्वैश होता है, एफआईआर कैसे रद्द होता है, कौन से कोर्ट को ये पावर होता है कि किसी भी एक्यूज व्यक्ति के ऊपर, किसी इंडिविजुअल्स के ऊपर अगर कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है तो उसको रद्द कर दिया जाए, किस कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, कितना समय लगता है, कौन कौन से स्टेप लेने होते हैं, क्या क्या रेमेडीज जिसके ऊपर एफआईआर होती है, यानी कि एक्यूज पर्सन को कौन कौन सी रेमेडीज में मिलती है। आप सभी को इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। जैसे कि मैंने पहले भी अपलोड किया था और मैंने बताया था कि आई हैड गेट 2 एफआईआर क्वेस्ट सक्सेसफुली फ्रॉम द दिल्ली हाई कोर्ट। वन इज फ्रॉम जस्टिस स्वर्णकांता सिंह एंड अनदर इज फ्रॉम जस्टिस अरुण मोंगा. So there is my two clients cases are pending before Honorable Delhi High Court. My first case from the Kirtinagar police station from Delhi, which was lodged at 2018. 18 में वो हमारे क्लाइंट्स के ऊपर केस हुआ था कीर्तिनगर थाने में, और उस केस को ऑनरेबल जस्टिस अरुण मोंगा जो दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं उनके अदालत में मेरा मैटर लगा था, एंड he is kind enough to give me relief and my clients. So the FIR has been quashed. At that time I made video about it and I described that I got a relief. I am able to get relief from the Justice Arun Munga courts, and my client's FIR has been quashed, and now my client is free. Another case I win in the court of Justice Swarnakanta Singh. You will remember that ex Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, is appearing in the court of Justice Swarnakanta Singh. So this is very highlighted case, and at the same time, before appearance of Arvind Kejriwal, before 2 days, I appear with the Honorable Justice Swarnakanta Singh court, and one of my clients who is residing the Pahalgaj area, and the case was lodged on him in 2021. The case was totally false, fabricated, and it was a fake case which was registered in Pahalganj Thana. So I request Justice Swarnakanta Singh, and her ladyship is very kind enough to give me relief. My client also feel very relaxed after his case has been quashed, FIR has been quashed. So now question is that what the provision and what is the process to quash an FIR? If you are getting any cases, if any FIR lodged upon you, or suppose you are accused, then you are not guilty, you are innocent. So what is the process? How to get FIR quashed? So the first provision is mentioned in CRPC section 482. जो हमारे संविधान की धारा है उसमें सीआरपीसी के सेक्शन 482 इसमें डील करता है, जहाँ पे एफआईआर क्वेश करने के तरीके बताए गए हैं. फॉर एफआईआर क्वेशिंग वी हैव टू अप्रोच हाई कोर्ट्स ओनली. प्राइमरी लेवल वी रीच एट हाई कोर्ट, देन इफ नॉट गेट रिलीफ वी कैन गो अप टू सुप्रीम कोर्ट. But I will explain here only high court case because I get 2 relief from high court only. So section 482 deal with FIR quashing. There is clear provision that if any case falsely or fake or fabricated lodged on any accused person, he can go to the high court, directly high court, under the provision of section 482 of CRPC, and he can submit his whatever his argument, whatever his documents, and if court consider that the person is innocent, if the investigation done and get a report in his favor, then FIR will be quashed. So similarly, one case from Kirtinagar Thana and one case from Pahalganj Thana, both cases are lodged on my 2 clients. They were different clients, and they were residing at the different location. One my client is residing at the Pahalganj police station area, and one is residing at Kirtinagar police station area. But both FIR has been lodged on both of them due to the personal and kind of जो उनके आपस में मनमुटाव था, आपसी बातचीत के चलते कोई बात बिगड़ गया है, कोई बात नहीं बन रहे, तो दे लॉज इन FIR, दे गेट इन trouble due to personal kind of
जो उनकी दुश्मनी होती है उसके चलते। सो इन बोथ केसेस आई ट्राई वन ऑफ केस फ्रॉम कीर्तिनगर थाना। सो द one family lodged another FIR on another family, accusing that they are attacked him and abuses him, or they used like derogatory words on base of caste and creeds. But what I found that the both family are from the same caste and community. They are neighbors and they are relative also. So I submitted before Honorable High Court that the both family are relative, living together. They are neighbor, and they have a heated argument. They have heated argument, but no case arising, question arising about caste and creed. बिकॉज अगर दोनों लोग एक ही कास्ट एक ही कम्युनिटी के हैं तो उनके ऊपर जाति सूचक भाषा का प्रयोग करने का या जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने का, अपमान करने का सवाल ही नहीं बनता जब दोनों एक ही कास्ट एंड कम्युनिटी के हैं। और इसी बिहाफ पे पुलिस कीर्तिनगर थाने में FIR दर्ज किया गया था कि इन लोगों ने जाति सूचक गाली दी है। तो जब दोनों व्यक्ति एक ही कास्ट, एक ही कम्युनिटी, एक ही समुदाय और आपस में रिश्तेदार भी हैं और एक पड़ोसी हैं, तो एक दूसरे के ऊपर मतलब जाति सूचक भाषा का प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो इसी ग्राउंड पे हमारा जो केस था वो ऑनरेबल जस्टिस अरुण मोंगा साहब के कोर्ट से हमें रिलीफ मिला और वहाँ पे वो केस मतलब क्वेश कर दिया गया, FIR रद्द कर दिया गया। दूसरा जो केस है सेकंड फ्रॉम पहाड़गंज पुलिस स्टेशन। वन ऑफ माय क्लाइंट इज लिविंग देयर एंड ड्यू टू पर्सनल rivalry with a shopkeeper, he get in trouble that someone accused him that he's dealing with drugs and illegal wine trade। मतलब किसी तरीके का ड्रग्स का, शराब का या किस नशीले पदार्थों का सेवन करता है या उसकी खरीद बिक्री में वो शामिल है। बट जो मेरा क्लाइंट था वो इनोसेंट था, उसका छोटा सा अपना व्यवसाय है, उससे उसका काम चलता है, वो अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता है। जो सामने का एक होटल वाला है उसको उसकी ज़मीन पसंद आ गई थी और मेरे क्लाइंट से वो चाहता था कि अपनी ज़मीन उसको बेच दे ताकि वो एक दूसरा होटल वहाँ पे बना सके। और इसी को लेके उन्होंने पुलिस के साथ मिली भगत करके और मेरे क्लाइंट्स के ऊपर फर्जी ड्रग्स का केस बनवाया था। तो उसके बारे में जब मैंने ये वाला जो मेरा सेकेंड वाला केस था ये चला था जस्टिस स्वर्णकांता सिंह जी के कोर्ट में, जहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी अपीयर हुए थे लीकर केस में। वो काफ़ी चर्चित केस रहा, आप लोग को पता होगा। तो मैं जब वहाँ पे अपीयर हुआ तो मैंने जस्टिस स्वर्णकांता सिंह जी को मैंने बताया कि लॉर्डशिप जो मेरा क्लाइंट है वो स्मॉल शॉपकीपर है, ही इज़ द एक्चुअल में लैंडलॉर्ड ऑफ दैट शॉप ऑल्सो एंड द अपोजिशन पार्टी इज अ बिग प्रॉपर्टी डीलर and a hotel chain owners. They have multiple guest house and hotels, and they are also society and building. They are developing plots also in the various area. They are very rich and they have enough sources and connection with the politician, bureaucrats and other people. So on the basis of their political connection or their approaches in the administration, दे वंस देयर माई क्लाइंट्स लैंड फोर्सफुली। वो चाहते थे कि जो हमारा क्लाइंट है वो ज़मीन बेच दे उनको और वो वहाँ पे होटल बना सके। इसी बात को लेके उन लोगों का आपस में विवाद चल रहा था काफ़ी दिनों से और हमारे क्लाइंट के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा था कि आप अपनी ज़मीन हमें बेच दो। और जब उसने नहीं बेचा तो पुलिस से मिलजुल के और उनको घूस खिला के जैसे भी उसके ऊपर FIR दर्ज किया गया और उसको परेशान किया गया। तो जस्टिस स्वर्णकांता सिंह ने एक ऑर्डर पास किया और आयोग को इन्वेस्टिगेशन रिकंडक्ट करने के लिए बोला और उसको जल्दी से जल्दी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए बोला। तो जब हाई कोर्ट के सुपरविजन में जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो दूध का दूध पानी का पानी हुआ और हमारे क्लाइंट्स को उसमें रिलीफ मिला। हमारे क्लाइंट को पुलिस ने उसमें दोषी नहीं पाया और अपोजिट पार्टी को दोषी पाया। तो उस बिहाफ पे उस FIR को क्वेश कर दिया गया। तो FIR क्वेशिंग के बारे में जो जानकारी है वो ये है। और इन केस इफ़ यू वांट टू एनी FIR क्वेश्चंस और अगर किसी का कुछ ऐसा FIR क्वेश्चन संबंधित कुछ केस है तो आप मुझे बेहिचक कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग, लॉ, इंश्योरेंस, लोन, रियल एस्टेट से संबंधित अगर आपका कोई सवाल है, कोई केसेस है तो आप मुझे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप सभी ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं
फिर से छोटे से वीडियो में, जहाँ पे हम फिर से किसी नए टॉपिक पे बात करेंगे और आपके जिज्ञासाओं को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।